up are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we are going to start our 6th chapter of class 2nd, which is about wild animals. So आज हम wild animals की category के बारे में discuss करने वाले हैं. Variety of wild animals are there who stay in forest or we can say in the jungles. ठीक है? चलो. So let's start our chapter. Wild animals are animals that live in nature without direct human care. They can be found in forests, jungles, mountains, and oceans. These animals are adapted to survive in their natural habitats and play an important role in maintaining the balance of nature. Learning about wild animals helps us appreciate their beauty and understand the importance of protecting them and their habitats. So wild animals क्या है जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं विदाउट ह्यूमन केयर. सो इन द लास्ट चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द डोमेस्टिक एनिमल्स. डोमेस्टिक एनिमल्स को क्या ह्यूमन केयर की रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स लिव विदाउट ह्यूमन केयर. ये कहाँ रहते हैं? ये फॉरेस्ट, जंगल, माउंटेन, ओशंस कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं. इन एनिमल्स को क्या होता है, ये एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में, एनवायरनमेंट में क्या अडाप्ट हो जाते हैं एंड हमारे नेचर के बैलेंस को मेंटेन करने में इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है. So today we are going to learn about wild animals, that how they help us to appreciate our beauty, okay, and understand the importance कि why should we protect them, why should we protect the habitats of wild animals, okay. चलो. Now the topic is identifying wild animals. So wild animals को identify कैसे किया जाएगा? So there are many different types of wild animals. Different types के wild animals होते हैं हमारे नेचर में. कुछ animals हैं जो land पे survive करते हैं, like lions, elephant and deer. Some wild animals live in water like dolphins, sharks and whales. And कुछ wild birds भी होते हैं like eagles and owls who soar in the sky. And reptiles like snakes and lizards litter on the ground. So birds, reptiles and some wild animals who live in water or in land. So variety of wild animals है जो हमारे नेचर में है. हर एक वाइल्ड एनिमल के अपने यूनिक फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू वो अपने एनवायरनमेंट में इजीली सर्वाइव कर पाते हैं. नाउ नेक्स्ट वी कम टू एनिमल हैबिटेट. सो अब एनिमल हैबिटेट्स यानी कि व्हाट द नेचुरल प्लेस वेयर डज अ एनिमल लिव, ओके, दैट विल बी नोन एज हैबिटेट. एक ऐसा नेचुरल प्लेस जहाँ एक वाइल्ड एनिमल या कोई भी एनिमल या प्लांट भी सर्वाइव करता है, उस प्लेस को उस पर्टिकुलर एनिमल का या प्लांट का हैबिटेट कहा जाता है. हम यहाँ पे एनिमल हैबिटेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो वाइल्ड एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट्स में सर्वाइव करते हैं. हर एक हैबिटेट क्या कुछ नेसेसरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है वाइल्ड एनिमल्स को फॉर देयर सर्वाइवल, लाइक फूड, वाटर, शेल्टर, है ना. सो ये सभी रिक्वायरमेंट होती है किसी वाइल्ड एनिमल की जो कि एक हैबिटेट अपने रहने वाले एनिमल्स को प्रोवाइड करता है सर्वाइवल के लिए. जैसे कि सबसे पहले है फॉरेस्ट. फॉरेस्ट का एक हैबिटेट ही है, ठीक है. ये किसका होम है? टाइगर्स, मंकीज, बर्ड्स, इन सभी एनिमल्स का हैबिटेट क्या है? फॉरेस्ट है. Now next we come to deserts. Deserts किसका होम है? Camels, lizards and snakes. Next we come to oceans. Oceans inhabited by fish, whales, okay, sea turtles. ये सभी कहाँ रहते हैं? Oceans में survive करते हैं. Next we come to mountains. Mountains में कौन से animals होते हैं? Like mountain goats, snow leopard, eagles. Okay, there are the pictures also which have been given to you of these examples. Next we come to grasslands. Grassland is a home to lions, elephant, zebras. ये सभी आपके grasslands में होते हैं. Now next we come to animal behavior. अब हर एक animal का क्या एक unique behavior होता है which help them to survive. See, wild animals have unique behaviors that help them to survive. Lions live in groups called prides. जैसे कि lions है वो अपने ग्रुप बनाकर रहते हैं और उनके ग्रुप को प्राइड कहा जाता है. एंड वो सभी एक साथ ही वर्क करते हैं टू हंट देयर प्रे. अपने शिकार को हंट करने के लिए दे ऑल वर्क टुगेदर. नेक्स्ट एलिफेंट्स. एलिफेंट्स भी अपने किसमें? ग्रुप में ट्रैवल करते हैं और उनके ग्रुप को हर्ड कहा जाता है. क्यों? फॉर प्रोटेक्शन एंड सोशल इंटरेक्शन. सो दैट कोई अगर प्रेडेटर उनको हंट करने की कोशिश करता है सो वो सभी एनिमल्स एक ग्रुप बना के उसके अगेंस्ट फाइट कर सके. सो प्रोटेक्शन के लिए ये एक साथ ही घूमते हैं एंड एक सोशल इंटरेक्शन को मेंटेन करने के लिए. बर्ड्स हैं. बर्ड्स क्या करती हैं? वो माइग्रेट करती है यानी कि शिफ्ट करती है वार्मर प्लेसेस में ड्यूरिंग विंटर्स. ठीक है, विंटर सीजन में वो किसी वार्मर प्लेस से माइग्रेट कर जाती हैं टू फाइंड फूड.
So understanding animal behavior help us to learn how animals adapt to their environments and interact with each other. So इस तरीके से animal behavior को समझना हमारे लिए ज़रूरी है so that हम ये समझ सकें कि कैसे animals अपने environment को adapt करते हैं और एक दूसरे के साथ interact करते हैं. Now next we come to animal diets. अब animals की क्या diets होती है? So wild animals जो होते हैं उनकी different diets होती है उनके habitats and need के basis पर. जैसे कि कुछ एनिमल्स आपके क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं. कार्निवोर्स मीन्स व्हाट कि दीज एनिमल्स ईट ओनली द फ्लैश, यानी कि दूसरे एनिमल्स का सिर्फ मीट कंज्यूम करते हैं. उन एनिमल्स को हम कार्निवोर्स बोलते हैं. ठीक है, द मीनिंग दे ईट फ्लैश. एग्जाम्पल लायन, टाइगर, शार्क, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोर्स. फिर कुछ एनिमल्स हमारे हर्बीवोर्स होते हैं. हर्बीवोर्स मीन्स व्हाट कि ये सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं. जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाएंगे उन्हें हर्बीवोर्स कहा जाता है. ओके, द हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स सच एज डियर, एलिफेंट्स, रैबिट्स. ओके, चलो. Now next we come to omnivores. Omnivores are the type of animals who eat both. यानी कि वो प्लांट्स और एनिमल्स खाने वाले दोनों ही तरीके के एनिमल्स होते हैं. यानी कि वो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खा सकते हैं, एनिमल का फ्लैश भी खा सकते हैं. ऐसे एनिमल्स को हम omnivores कहते हैं. ओके, हु ईट बोथ, दैट इज प्लांट एंड मीट. एग्जाम्पल बियर, स्क्विरल, ओके, एंड रकून्स. ये आपके बियर है, स्क्विरल, रकून, ये सब omnivores होते हैं. ठीक है, चलो. नाउ knowing about animal diets help us understand their role in the food chain and ecosystem. So अगर हमें हर एक एनिमल की डाइट पता है कि कौन सा एनिमल क्या खाना पसंद करता है, उस अकॉर्डिंग हम उनका क्या रोल समझ पाते हैं हमारी फूड चेन में एंड इकोसिस्टम के अंदर. Now next we come to animal conservation. Conservation मतलब क्या, एनिमल्स को और उनके हैबिटेट्स को क्या करना, प्रोटेक्ट करना इज नोन एज कंजर्वेशन. सो बहुत सारे से वाइल्ड एनिमल्स हैं जो एंडेंजर्ड है. एंडेंजर्ड मीनिंग व्हाट कि दे आर अबाउट टू वैनिश फ्रॉम आवर नेचर. हमारे इकोसिस्टम से, हमारे नेचर से क्या वो खत्म हो सकते हैं, उनका नंबर एंड होने वाला है. ऐसे एनिमल्स को एंडेंजर्ड कहा जाता है, यानी कि वो एक रिस्क पे है ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट का मतलब है जो एनिमल्स आज के टाइम पे हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते ही नहीं है, लाइक डायनासोर्स, है ना. सो वो क्या है, वो एक्सटिंक्ट एनिमल्स है. अब ऐसे एनिमल्स जो अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं लेकिन दे आर इन रिस्क, ओके, वो एक्सटिंक्ट बनने के रिस्क पे है, उनको हम एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं. सो बहुत सारे ऐसे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो एंडेंजर्ड हैं, यानी कि दे आर एट रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दैट टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स बाय प्रिजर्विंग देयर हैबिटेट्स, रिड्यूसिंग पोल्यूशन एंड स्टॉपिंग इलीगल हंटिंग. ओके, सो जो एनिमल्स एंडेंजर्ड है उनको प्रोटेक्ट करना, उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना, पोल्यूशन रिड्यूस करना, एंड जो ये इलीगल हंटिंग हम लोग करते हैं एनिमल्स की, उसको स्टॉप करना ज़रूरी है सो दैट दीज एनिमल्स डू नॉट बिकम extinct. Okay, now conservation efforts help maintain the balance of nature and ensure that future generations can enjoy the beauty of wild animals. So अगर हम इस तरीके से conservation efforts लेंगे, so इससे हमारे nature का एक balance maintain रहेगा, and जो future generation है वो क्या कर सकती है, हमारे wild animals की beauty को enjoy कर सकती हैं. Okay, चलो. So that's all for the chapter today. I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you all.